Okay. Good evening, Aditya. Welcome back to evening session. Aditya, Priyanshi, Rashi, Rekha. Welcome everybody. So, in today's session, we are going to discuss on a very important and interesting topic: how to select optional for your UPSC exam. Okay. So, why this session is so important for you all? Because this is the one area. Okay, we all decide to prepare for UPSC exam. We all know what to study in GS subject, but when a question come in our mind, what should be your optional subject? What should be your optional? As you are belong to humanity background, you have done your graduation in humanity subjects like political science, sociology, or means you are most of you are from BTech background. You have done your graduations in science background. So what should be your optional subject? Because optional play a very important role that decide your marks, that decide your rank, that decide your cadre. Okay, you want to become an IS officer, you want to become an IPS officer. So how much marks you should score in a mains exam or in overall exam that you will get able to get a chance to become an IS officer, you will get a chance to become an IPS. In that case, your optional play a very important role. Okay, so that's why this session is important for to know how to choose the optional subject for your UPSC exam. In this session, I'm not going to tell you should choose geography optional, you should choose sociology optional, or you are from science background, so you should choose mathematics as an optional subject. Here I'm just want to give you some hint. Okay, I will help you to choose your optional subject. And one thing I want to mention here, that this is your decision, this is your own decision, that where you are comfortable, whether you are comfortable with that subject or not. This is your decision. I will just give you some guideline, I will give you some important points that you should keep in your mind while choosing an optional subject. Okay, so let's start this session with me. This is me, Praveen Chove. I'm the faculty of geography, environment and current affair and Carol IS. So let's start our session. First of all, what is important here, before going to choose any optional subject, you must know this syllabus. My friend, this is very important to know exam pattern. You should know this exam is divided into three stages. First stage is called your prelims exam, second is your mains, and third one is your personality interview, or called, we can say, interview or personality test. And whatever marks you will get in prelims exam, that marks is only for qualifying in nature, means you will qualify, you will be eligible to write a mains exam. Okay, this is just an invitation to write your mains exam. Your mains marks, whatever marks you will score in mains exam, that will decide your rank, that will decide your main means whether you will get IS officer, IS rank, or whether you will get in IPS or not. So this is depend to understand the first UPSC mains syllabus, because in entire session is about how to choose an optional subject, and this optional subject is a part of your mains exam, not a prelims exam. So I'm not going to discuss anything about the prelims exam, this is about the mains exam. So you see the list of the papers that included in your mains exam, and I am also mentioned here whether this will be a part of your merit paper, that will be counted as merit marks, or whether this will be a part of qualifying in nature. So when you will see a main syllabus, you will find that the first two paper, paper A and paper B, is a qualifying in nature. Okay, they are qualifying in nature, means total marks will be 300 marks, 300 marks for each paper. Whatever marks you will score in these two paper, that will be not added in your merit list. अगर आपने 300 में से 250 मार्क्स भी ला दिए, तो वो आपको मतलब मार्क्स आपके मेंस में जुटेगा नहीं. ये दिस इज ओनली यू हैव टू क्वालिफाई एंड यू हैव टू स्कोर जस्ट 25% ऑफ 300 मार्क्स. 25% लाओगे तब आप क्वालिफाई हो जाओगे. लेकिन very important to qualify these two paper. Like in CSAT, in prelims exam, CSAT is very important to qualify in CSAT. You have to score 33% marks, okay, or we can say 66 marks out of 200. Then you will qualify in prelims exam. If your marks is good in GS paper 1 and that marks is cross cut off that declared by UPSC, then you will be eligible to write a mains exam. Similarly here, this two paper is a qualifying in nature. Okay, you have to qualify this paper so that your other papers like essay paper, GS paper and optional paper marks will be added in your merit list. Now you see the papers to be counted for merit. Okay, so first paper here is essay paper. So essay paper will be at 250 marks. Okay,
So you have to write 2 essay in 3 hours. Okay, how many essays? You have to write 2 essays in 3 hours. There will be some means topics will be given. That topic is divided into two sections, section A and section B. Each section has 4 topics. You have to choose only one topic from each section A and section B. Means you have to write 2 essay, and each essay will be of 125 marks. तो आपको 2 essay लिखने हैं 3 घंटे में, और 3 घंटे में दो essay होंगे. आपके पास 8 ऑप्शंस दिए जाएंगे. देयर विल बी 8 चॉइसेस, एंड आउट ऑफ 8 चॉइसेस यू हैव टू सेलेक्ट 2. ओके, एंड दैट 8 इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. तब जाके आप 2 ऐसे लिखोगे. द टोटल मार्क्स विल बी 250 मार्क्स. Now whenever you see that marks distribution of mains exam, try to focus on one thing, that how much you should score in essay, how much you should score in general studies, and how much you score in optional paper to become an IAS officer. So I will recommend here, if you are going to write, if you are planning to appear in 2022, okay, 2022 or 2023 UPSC mains exam, so you have enough time in your hand, so you can make a target from today onwards. Okay, that you have to score, you have to do such a work hard, you have to do such a practice, lot of practice, that you will able to score at least 140 plus marks in your essay paper. आपको इतना प्रैक्टिस अभी से आप ये दिमाग में रख लो, ठीक है, कि अगर आप 2022 में मेंस देने जा रहे हो, ठीक है, तो पहले तो प्रीलिम्स को क्लियर करना है. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स बिना क्लियर किए मेंस नहीं ले पाओगे. लेकिन जब मेंस का आपके जब पूरे अगर माइंडसेट बना लिया कि आपको मेंस देना है, तो अभी से आपके माइंडसेट में मार्क्स का भी होना चाहिए कि इतना मार्क्स आपको लाना है किसी भी हालत में. अब उसके लिए आपको कितना मेहनत करना है, बिकॉज इफ यू विल सेट योर टारगेट, okay, if you set your goal that you have to score 140 plus marks in essay, then this will be help you to prepare for your entire UPSC exam. तब आप उस तरह से उस लेवल से तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि आपको पता है कि 140 scoring 140 plus marks in essay is not a joke. It's not an easy task. It's like a lot of practice required. You have to do you have to study a lot of materials, government source materials. You have to focus on your GS subject. You have to focus on newspapers, daily newspaper, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स पढ़ना होगा आपको, तब जाके 140 प्लस मार्क्स ऐसे में लाना. और 140 प्लस मार्क्स ऐसे में लाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर आपका जीएस और ऑप्शन पेपर में आप सही मार्क्स ला रहे हैं, तो आपका रैंक कहीं ना कहीं 1 से लेके 100 के बीच में आराम से रह जाएगा. योर रैंक विल बी बिटवीन 1 and 100, फ्रॉम रैंक 1 to 100. आपका रैंक कहीं ना कहीं 1 से 100 के बीच में रहेगा. अगर आप ये टारगेट अभी सेट कर लेते हैं कि 2022 में अगर मेंस लिखना है, 2023 में मेंस लिखना है, तो यू हैव टू स्कोर 140 प्लस मार्क्स. दिस आपको उससे कम लाना नहीं है. फॉर दिस यू हैव टू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज आल्सो. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको करना है. तो अगर आपका रैंक 1 से लेकर 100 के बीच में लाना, यू वांट टू बी, अगर आपको आईएएस ही बनना है, इवन आपको आईपीएस नहीं बनना, आपको आईआरएस नहीं बनना, आपको आईएएस ही बनना है, तो के लिए आपको अभी से मार्क्स जो गोल है वो दिमाग में अभी से बैठ जाना चाहिए कि 250 मार्क्स अगर ऐसे है तो 140 प्लस हमको मार्क्स लाना है. देन योर जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज 2, 3 and 4. नाउ यू शुड गो थ्रू इन डिटेल सिलेबस ऑफ जीएस पेपर. आई विल रिकमेंड यू मींस मोर देन 10 टाइम्स यू सी एटलीस्ट द सिलेबस. अगर आप सिलेबस देखते हो ढंग से, तो आपका सोचिए 30% काम हो गया. बिकॉज वेन एवर यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर और एनी ऑफ द आर्टिकल्स, एनी ऑफ द मैगजीन्स और योर जीएस बुक्स, you should know the topics. If topic is will be stored in your mind, then you can easily identify which one is important news article, which one you should read for exam, and which one you should completely avoid it. तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. इसलिए जीएस पेपर 1, क्योंकि ऐसे का कोई सिलेबस दिया हुआ नहीं है. ऐसे में आपसे बस यूपीएससी इतना बोला है कि they will give marks to those candidate who will follow the topics. अगर कोई भी टॉपिक आप ऐसे में लिखते हैं तो उसी टॉपिक्स के पर ही आपको ऐसे लिखना है. ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक चूज किया और आपने ऐसे इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा और बॉडी और कंक्लूजन में कहीं और लिख दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. लेकिन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस, बहुत अच्छे सिलेबस को डिफाइन किया गया. टॉपिक्स के दिया है किस किस टॉपिक क्या आपको पढ़ना है. ज्योग्राफी में व्हाट यू हैव टू स्टडी इन इंडियन सोसाइटी, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन वर्ल्ड हिस्ट्री, what you will study in Indian culture and history part. Okay, so very well defined topic in GS paper 1, 2, 3, 4. Now you should set a target that at least GS paper 1, now GS paper 1 is a subject where a bookish information is required here. Okay, if you will read a Lakshmikant, if you read a spectrum, modern India spectrum, that will be the part of modern India. If you'll go through an entire NCRT
and for geography and history, then you can easily score at least 100 marks out of 250, 100 प्लस मार्क्स इन जीएस पेपर वन, क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर से बहुत ही कम लिंक, करंट अफेयर से बहुत ही कम होता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको कहीं ना कहीं जी आपके जो बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, वो उससे ही आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हिस्ट्री के एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल दे विल आस्क अमेरिकन रेवोल्यूशन, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन रशियन रेवोल्यूशन, सो यू कैन इजीली okay, that can be easily you can score by reading the content from NCERT। तो कहीं ना कहीं जीएस पेपर वन में करंट अफेयर से क्वेश्चन जो भी आएंगे आपको ज्योग्राफी पार्ट से आएंगे। ओके, एंड ज्योग्राफी पार्ट एंड एनवायरमेंट पार्ट बोथ आर ओवरलैपिंग इन जीएस पेपर वन, so you should set a target that you should score at least 100 plus marks in GS paper 1। now GS paper 2 is your entire governance। okay, governance के बारे में को पढ़ना है, पॉलिटी, आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, ये तीन कोर एरिया आपका जीएस पेपर 2 का। तो जीएस पेपर 2 में यस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ करंट अफेयर। इफ यू गो थ्रू अ रेगुलर न्यूज़पेपर, ओके, न्यूज आर्टिकल्स, ओके, राइट अबाउट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के ऊपर कोई आर्टिकल आया है, पॉलिटी का अगर किसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का अमेंडमेंट करने जा रही है गवर्नमेंट, ओके, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज के बारे में बात किया जा रहा है, लाइक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके लिए कि कोई प्रोसीजर पे चेंजिंग हो रहा है, या लोकसभा, यू नो, एंटी डिफेक्शन लॉ इज ऑलवेज इन न्यूज, ओके, राइट टू प्राइवेसी इज ऑलवेज इन न्यूज। ये सब पॉलिटी में कुछ करंट अफेयर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। या यू कैन सी दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स along with the Lok Sabha, okay, Lok Sabha और legislative assembly का election साथ में simultaneously होना चाहिए। So do you think that this will be helpful for maintaining a balance in political structure, or we can say it's a very good example of cooperative federalism? okay, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो करंट अफेयर में काफी न्यूज में आते रहते हैं। तो आपको यहाँ पर जीएस पेपर 2 में क्या करना है कि पहले तो आपको इंडियन पॉलिटी, लाइक फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत बुक, एम लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना, बिकॉज इफ यू विल गो थ्रू इन डिटेल स्टडी ऑफ एम लक्ष्मीकांत फॉर इंडियन पॉलिटी, दिस विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। if suppose 14 to 15 questions become from Indian polity, you can easily solve each and every question, क्योंकि इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन जो है काफी अच्छे आते हैं, आसान आते हैं। आसान उनके लिए होता है जो कि कंसेप्चुअल बेस्ड बहुत अच्छे से पढ़े, उनको समझ समझ के पढ़े। और बिलीव मी, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप कितनों बार भी पढ़ लोगे आप उसको बार बार भूलते हो। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन है कि हाउ स्पीकर रिजाइन, स्पीकर रिजाइन कैसे करता है, वो किसको इसको अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, तो ये एक टॉपिक आपको दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, आप पढ़ोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाए, क्या स्पीकर अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकता है, क्या स्पीकर अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को दे सकता है, क्या स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को दे सकता है, या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स जब आप देखोगे ऑप्शन में आएंगे तो आप यू विल बी कंफ्यूज इन एग्जाम। So M Lakshmikant book is one important standard book that will help you to develop base in polity. So whenever you will write an answer in GS paper 2, you have to first explain definition, you have to first write constitutional provisions। अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो अब पूछता है कि अभी रिसेंटली जो भी कंट्रीज में हो रहे, बहुत सारे स्टेट्स में लेजिस्लेटिव एमएलए जो है कि उनको रिजाइन कर रहे हैं, वो पार्टी को स्विच कर रहे हैं फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। सो डू यू थिंक दैट कि एंटी डिफेक्शन लॉ का जो रेलेवेंस था, जो उसका इंपॉर्टेंस था, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा। So when you will start to write an answer, your first introduction you will write about the anti-defection law, where is it is exactly given, वो कहाँ दिया है, किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में दिया हुआ, आखिर वो किस शेड्यूल में दिया हुआ है, कब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बारे में आप कुछ ना कुछ शुरू में तो लिखोगे, उसके बाद अपना व्यू पॉइंट दोगे कि वेदर इट विल बी लॉस्ट इट्स रेलेवेंस और नॉट। तो कहीं ना कहीं जीएस पेपर 1-2 का आंसर लिखने में आपको पॉलिटी का जो बेस है और जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, आर्टिकल्स में भी यू हैव टू राइट आर्टिकल्स आल्सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, ऑल दिस थिंग्स यू आर एबल टू राइट इट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज पे दिमाग लगाना होगा। Yes, it will be enough for your prelims. Lakshmikant book is enough for your prelims, but for mains exam, that's I'm explaining here that reading a newspaper will be a very helpful, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे जो जीएस पेपर 2 में है वो आपको करंट अफेयर से, करंट सिनेरियो जो इंडिया में हो रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया में, उसके बेस्ड पे आएंगे। लेकिन बिना बेस समझे आप उस चीज का आंसर लिख नहीं पाओगे। तो आपको बेस प्लस करंट अफेयर दोनों को, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों को मिलाकर एक प्रॉपर आंसर लिखना होगा। सो यू कैन देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि
उनको पॉलिटिकल कुछ उतना करंट अफेयर नहीं पता रहता है, तो यू कैन स्कोर 90 प्लस मार्क्स. Okay, you can score 90 plus marks, so you can make a target. Yes, about governance again, one book लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की बुक आती है, लक्ष्मीकांत की बुक आती है. ये जो बुक है इंडियन पॉलिटी करके बुक आती है लक्ष्मीकांत की, जो कि पॉलिटी में आपको काफी हेल्प करेगा. एंड गवर्नेंस करके एक बुक आती है, वो भी लक्ष्मीकांत का ही है. गवर्नेंस करके बुक आती है, वो आपको जीएस पेपर 2 में काफी हेल्प करेगा, जिसमें गुड गवर्नेंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बहुत सारे अच्छे मतलब पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या रोल है, चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल है, पूरा अच्छे से दिया. वो गवर्नेंस करके बुक आती है, वो भी लक्ष्मीकांत की भी है, तो आप वो बुक खरीदना. प्लस आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन. अभी के टाइम में जो भी अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश गए हैं, ठीक है, तो अभी बांग्लादेश और इंडिया का क्या क्या इश्यूज पे बात हो सकती है. वाई बांग्लादेश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी. इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट. व्हाट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से दैट नेबरहुड फर्स्ट. जो हमारे आसपास कंट्री, उनसे हमको अच्छा रिलेशन बनाना है. तो अभी बांग्लादेश और इंडिया के क्या क्या मतलब डिस्प्यूट्स हैं, उनके ऊपर क्या क्या तिस्ता वाटर डिस्प्यूट्स आप देख सकते हो. ओके, जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो भी है, वो इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स. माइग्रेशन जो कि बांग्लादेश से इंडिया में हो रहे हैं, तो उनको किस तरह से कम किया जाए. जो कि इनफिल्ट्रेशन हो रहे हैं बॉर्डर एरिया से, ठीक है, फेक करेंसी नोट्स आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से काउंटर टेररिज्म टाइप का, all this will be important. So international relation is basically current affair. Okay, करंट में जो भी चल रही है, इंडिया की जो भी फॉरेन पॉलिसी है अभी के प्रेजेंट टाइम में, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो ये इंटायरली करंट अफेयर बेस्ड है. इसके लिए आपको क्या करना होगा, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना होगा. इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पहले तो आपको बेस समझना होगा, ठीक है, कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेस क्या है. ओके, अगर आप जानना चाहते हो इंडिया चाइना का, तो इंडिया चाइना का जो ओल्ड जो भी पास्ट हिस्ट्री रहा है, पंसिल एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1954-55, उसके बारे में आपको जानना होगा. लिबरेशन बांग्लादेश को किस तरह से फ्रीडम मिला, उसके पीछे हिस्ट्री क्या था, वो आपको जानना होगा. तब जाकर इंडिया के आसपास की जो कंट्री है, उन दोनों का रिलेशन को अच्छे से समझ पाओगे. Okay, so this is the general studies paper 2. You score at least 90 plus marks. Then GS paper 3. Now GS paper 3 में चार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज योर इकोनॉमी, ओके, प्लस सेकेंड वन इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज योर इन्वायरमेंट, ओके, फोर्थ वन इज योर इंटरनल सिक्योरिटी, एंड one more subject called disaster management. Okay, so economy, science and technology, environment, internal security and disaster management. So economy will basically whatever you will read in economy for prelims exam or for mains exam, like economic survey. आप economic survey तो जरूर से जरूर पढ़े. इकोनॉमिक सर्वे बिना पढ़े आप आंसर जीएस पेपर 3 में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि दे विल आस्क योर व्यू पॉइंट, दे विल आस्क यू सजेशन, और दे विल आस्क यू द सिचुएशन दैट इज हैपेंड इन इंडिया एंड व्हाट गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप to means to modify or to overcome such a problem. तो ये सारी इकोनॉमिक सर्वे में बात बताई जाती है. इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ने लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा कंट्री का, उसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम था, और गवर्नमेंट जो आने वाले समय में क्या स्टेप्स ले रही है टू अचीव देयर टारगेट्स. तो वो चीज आपको बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. लेकिन हाँ, उसके पहले भी इकोनॉमिक का जो बेसिक चीज है उस पर आपको याद जरूर होना चाहिए. यू शुड फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी. You should know what is fiscal policy, monetary policy, what is banking, all these things, basic things. तब जाके आपको समझ में आएगा. So कहीं ना कहीं GS paper 3 is entirely or current affair based. Okay, so current affair based, this is scoring subject. If you go through a entire current affair for one and last 2 year current affair, science and technology, you should know about biotechnology, recent जो भी research and development हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में आप जान लोगे. अभी इसरो क्या क्या प्लानिंग कर रही है सैटेलाइट लॉन्च करने की. इन्वायरमेंट का जो भी रिसेंटली गवर्नमेंट बिल्स लाई है फॉर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, और इंटरनल सिक्योरिटी में जो भी फेक करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, नक्सलिज्म के बारे में बात करते हैं. तो ये सब अगर आप करंट अफेयर में जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो. देन यू कैन आल्सो स्कोर 100 प्लस मार्क्स इन आउट ऑफ 250. एंड फिफ्थ वन इज योर जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स पेपर. नाउ फॉर एथिक्स पेपर यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर स्टडी ऑफ ए स्टैंडर्ड बुक. ठीक है, एक बुक का नाम हम बताएंगे, लेक्सिकॉन करके बुक आती है, लेक्सिकॉन के एथिक्स करके बुक आती है, लेक्सिकॉन का. दिस बुक विल हेल्प यू टू नो ऑल द डेफिनेशंस, मींस व्हाट इज द एम्पैथी, व्हाट इज वैल्यूज, व्हाट इज ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट इज द प्रोबिटी. ओके, ये सब जो एटीट्यूड्स क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है. ओके, सो यू शुड नो फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ ऑल दिस वर्ड्स, then you will able to apply in your daily lives. कोई भी आपको केस स्टडीज दे देता है जनरल स्टडीज पेपर 4 में, एथिक्स पेपर 4 में, तो आप उसमें अच्छा से लिख सकते हो.
तो इसमें भी आपको 90 प्लस टू 90 टू 100 प्लस मार्क्स आपको रखने होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि अगर आप टारगेट सेट करते हो अपने मार्क्स का, यू विल ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर टेस्ट सीरीज पर्पस, दे कैन इजीली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। ओके, तो लास्ट पेपर जो आता है 8 और 9 पेपर, सी यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शनल पेपर। सिंस 2013 onwards when there was change in syllabus, so in मेंस एग्जाम का सिलेबस चेंज हुआ 2013 में, तो आपको पहले 2013 से पहले क्या था, यू हैव टू चूज टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। नाउ यू हैव टू चूज ओनली वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड ईच पेपर विल बी 250 मार्क्स। ठीक है, 250 मार्क्स होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना से क्या होगी, आपका जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसको चूज करने में कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द इंटायरली ऑप्शन पेपर में किस तरह से चूज करना है और क्या उसमें देखना है। तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल, वेटेज ऑप्शनल इज 25% आउट ऑफ द टोटल मार्क्स। आप देखो वेटेज ऑफ ऑप्शनल इज 25%, जीएस विल बी 49%, एसए विल बी 12%, and your interview will be a 14%. Okay, so this is the total marks of the 500 marks for optional paper. Okay, so scoring a good marks in optional is very very important here. Now another important thing is here, now what are the optionals available? Okay, what are the options that is you can choose out of the list given by UPSC in mains exam? तो अब देखो ऑप्शनल के जो भी लिस्ट है, ये सारे ऑप्शनल आपको मिलेंगे, इसमें से किसी एक पेपर को आपको चूज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी है। ओके, ईच ऑप्शन विल बी योर 250 मार्क्स। ओके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन सी लिस्ट ऑफ द ऑप्शन। अभी भी आप देखकर ना, अभी आप देखकर क्या कि आप अपने मन में समझ सकते हो कौन सा ऑप्शन आपके लिए इजी है। देन साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, बॉटनी, then this is called political science and international relation, PSIR, political science international relation, management, economics, animal husbandry and veterinary science, agriculture, geology, law, statistics, okay, chemistry, physics, mathematics, electrical engineering, mechanical engineering, medical science, zoology, commerce and accountancy. So those who have done a BTech, okay, what are the subject available for them? So you have done a BTech, so obviously you will go through, you want to choose some science subject, or you have done electrical engineering, so you want to choose electrical engineering. If you've done mechanical, so you can choose a mechanical, or those who are from medical background, so they can choose a medical science, or they have a zoology as an optional subject, or you can also choose anthropology. This is for the medical science student. Okay, those who are from commerce, they can choose either a management or commerce and accountancy, or those who have done MBA for their, see all student means those every background, जो भी जो सब background से complete academic background जो भी है, तो आपको सारे ऑप्शनल अवेलेबल है आपके चूज करने के। ऐसा नहीं कि साइंस वाले के बेनिफिट है, यहाँ पर ह्यूमैनिटीज वाले को बेनिफिट है, मेडिकल वाले को कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप चूज कर सकते हो। फॉर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट यू हैव डन योर मास्टर, MA और जो भी आप आर्ट्स से पढ़े हैं, तो आपके लिए सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कोई भी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो। दिस इज अगेन डिपेंड ऑन योर चॉइस, अगर आप जिस सब्जेक्ट में कितना कंफर्टेबल हो। अगर आपको इन सारे सब्जेक्ट में से कोई भी चूज नहीं करना है, यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न, अगर आप नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करते हैं, यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया और यू आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, यू वांट टू चूज योर ओन लिटरेचर सब्जेक्ट, तो उसमें भी लिटरेचर भी आपको अवेलेबल है। अगर आप लिटरेचर लेते हैं तो आपको इसमें से कोई सब्जेक्ट को चूज करना नहीं है, दैट विल बी काउंट एज योर ऑप्शनल। So literature available is Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Konkan, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu and English. Now this is a very good advantage for those who want to choose literature. Suppose you are from Assam and you want to choose Assamese as a literature subject. So what is the benefit of this? Is that you have a very less competition in Assamese literature. Only those who are from Assam वही तो चूज करेंगे, बाकी नॉर्थ इंडिया के अगर किसी को असमीज में पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंपटीशन कहीं ना कहीं इसमें कम होता है। तो दोज हु आर चूजिंग अ लिटरेचर ओवर दिस सब्जेक्ट्स, अगर इस सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और मेडिकल साइंस से, और यू आर चूजिंग वन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिटरेचर, देन ऑब्वियसली विल बी एन एडवांटेज। आपको कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हो जाते हैं,
क्योंकि जो भी आप देखिए आपका असामीज कॉपी जो भी चेक करेगा असामीज, दोज फैकल्टी नोज असमी वेरी वेल, ही विल चेक योर कॉपी। तो आपको एक तो एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको आपका जो भी आंसर होगा आप उस लैंग्वेज में लिखोगे और आपको कंपटीशन बहुत ही कम रहेंगे, तो आपको एक मार्क्स इसमें जो मिलने के चांसेस वो काफी ज्यादा है। और एवरीबॉडी वांट टू प्रमोट देयर ओन रीजनल कल्चर, एवरीबॉडी वांट टू प्रमोट देयर मींस ओन कल्चर। तो कहीं ना कहीं एक जो भी चेक करेंगे कॉपी उनको एडवांटेज, वो कहेंगे मार्क्स काटेंगे, जानबूझ के तो मार्क्स तो काटेंगे नहीं, इतना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस आर द हाईली डिमांड ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे बच्चे ऑप्शन लेते हैं, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी। तो इसमें क्या होता है, कंपैरिजन होता है आंसर्स का। अगर हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आंसर लिखा, तो आपको मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें एग्जामिनर ने आपको दिया 5 मार्क्स, किसी ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है, तो उसका मार्क्स मिलेगा 6 मार्क्स, और उसका आंसर आपका एक स्टैंडर्ड हो जाएगा, उससे कंपैरिजन करने लगेंगे कि वेदर यू आर राइट इन सच स्टैंडर्ड और नॉट। तो कहीं ना कहीं मिलता है एडवांटेज, कहीं किसी भी आंसर लिखने का एक लिमिट होता है, जो कि आप लिटरेचर में देख सकते हो, और किसी सब्जेक्ट में लिमिट नहीं होता, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख सकते हो उसमें। तो वो डिपेंड करता है आपके इंटेलेक्चुअल पे, आप कितने से सब्जेक्ट को समझे हो, कितना से पढ़ रहे हो। So I will suggest, if you are comfortable with this any of the literature subject, you can go through and choose as a literature as one of your optional subject. Okay, this will be a one important benefit. Okay, next one is here the list of the मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि कितने बच्चे सब्जेक्ट्स लेते हैं। अभी का जो मतलब जो फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लाइक सपोज इन प्रीलिम्स एग्जाम 4.5 lakh student is appeared. Okay, 4.5 or 3 lakh student is appeared. How many students will means appear in mains exam? Okay, every year you see 14,000 to 15,000. 14,000 to 15,000 student is writing mains exam, and out of the 15,000 student, 3,000 have the same option called geography, 3,000 have the same option called history, public administration have the 3,000. See, these are the some famous optional subject: geography, history, public administration, sociology, all other science subject मिलाकर 1000 स्टूडेंट हो जाते हैं, लिटरेचर मिलाकर 1000 हो जाते हैं, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पीएसआरआई, इकोनॉमिक्स मिलाकर 1000 हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कंपटीशन आप देखोगे ज्यादातर बच्चे क्या लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बीटेक background student, they want to choose geography as optional subject, even a science background and even some arts background also, if they more comfortable with geography, so they can choose geography as optional subject. Even history is chosen by 3,000 candidate. तो इसमें कहीं ना कहीं अगर देखिए ऐसा नहीं कि आप अगर सब्जेक्ट लेते हैं और उसमें अगर बहुत सारे बच्चे अपियर हो गए तो आपको मार्क्स कटेंगे। if you know your subject very well, if you are means completed your syllabus thoroughly, you have done a lot of practice, so obviously score a good marks। इस बार देखिए जितने भी टॉपर आए हैं अच्छे से टॉपर, उनका ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, इस बार ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट लिए थे उनका अच्छा मार्क्स आया है, अच्छे रैंक भी लाए हैं। तो ऐसा हर साल होता है कि मतलब ये इस पे कभी मत जाइए कि बहुत सारे बच्चे लेते तो हमको ये नहीं लेना है। दिस इज अगेन डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी, वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ और नॉट। इफ यू नो दिस सब्जेक्ट वेरी वेल, अगर हिस्ट्री आपको बहुत ही अच्छा, हिस्ट्री बहुत अच्छे से आप पढ़ते हो, हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छा है, आपने मास्टर भी किया है, ठीक है, आपने नेट क्वालिफाई भी किया है, तो यू कैन चूज हिस्ट्री एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन हिस्ट्री, यू विल बी गुड इन सोशियोलॉजी। ऐसा नहीं कि आपका जो दिमाग है वो हर किसी का दिमाग सेम होगा, यू विल परफॉर्म गुड इन सोशियोलॉजी, देन यू कैन चूज सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। Okay, so this is just a number, I am just indicating how many candidates are out of 15,000 on average are choosing subject called geography, history, public administration and sociology. Okay, now some basic criteria while choosing an optional subject. Okay, तो अगर आप पूछते हो किसी से भी कि what should be my optional subject, what should be I choose optional subject, तो what people will recommend you? First they will recommend you, I will test each and everything whether it will be a relevant or not. So one will say it will be an interesting option, if choose those subject that is more interesting. और इसमें यूपीएससी में एक बहुत ही फेमस बात कही जाती है कि चूजिंग एन ऑप्शनल इज लाइक चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। आप जिस लाइफ पार्टनर को चूज करने से जितना क्राइटेरिया आप यूज करते हैं, आप देखते हैं कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विथ नॉट, सेम थिंग इज अप्लाई हियर आल्सो, बिकॉज यू हैव टू spend more than years, 2 years with your optional subject. Okay, suppose you are planning to appear in 2022. Okay, so from now from 2021 you will start to read the same optional subject. If you are not interested, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसके साथ आप उस सब्जेक्ट को कितना समय दे नहीं पाओगे, you will not able to do a writing practice, you will not able to cover on entire syllabus on time.
सो इंटरेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट बहुत होना जरूरी है सब्जेक्ट में। ओके, एंड ऑल्सो नॉट मीन्स आप ये भी नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज योर फ्रेंड इज चूजिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऐसे भी बहुत होते हैं बच्चे जो कि उनका फ्रेंड अगर सोशियोलॉजी चूज करे तो वो भी सोशियोलॉजी चूज करनी है, ऐसा नहीं करना है। See whether you are comfortable with or not, you are interested with the subject or not. If you are not interested with the subject, you are interested with the history, you can choose history. You are interested with the physics, you can choose the physics, because you know you means your brain is more comfortable, you are more comfortable with the physics। आपको physics solve में जो भी न्यूमेरिकल्स है, डेरिवेशंस है, उसको सॉल्व करने में आपको अच्छा लगता है, you can choose physics। आप ये मत सोचिए कोई बोलेगा फिजिक्स स्कोरिंग नहीं है, टाइम टेकिंग है, ये सब वो सब दिमाग में नहीं लाना। इफ यू आर कंफर्टेबल, यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन चूज फिजिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज विल हेल्प यू टू क्वालिफाई। Right now we have not started public administration as an optional subject. If in future when we'll start, we'll inform you. Okay, so popular optional एक होता है कि जो बोलते हैं लोग कि जो पॉपुलर ऑप्शनल है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि ज्योग्राफी एक पॉपुलर ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी पॉपुलर है। एक होता है कि पॉपुलर ऑप्शनल जो भी उसको चूज करो, बोलते हैं कि जो भी ट्रेंड में चल उसको चूज करो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। पॉपुलर ऑप्शनल से नहीं कुछ होता है। अगर मैं बोल दूं कि ज्योग्राफी बहुत ही पॉपुलर है, इस साल भी जो बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो क्वालिफाई करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन सच अ सब्जेक्ट, देन हाउ यू विल एबल टू परफॉर्म वेल इन सच अ सब्जेक्ट। सो डोंट मींस लिसन अबाउट द पॉपुलर ऑप्शनल। Okay, scoring optional, none of the subject is scoring. If you will perform, if you will do a work hard in each and every subject, अगर आप जिस सब्जेक्ट में आप चूजिए ऑप्शनल, अगर उसमें आप अच्छा से मेहनत करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, तो वो आपके लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या हिस्ट्री हो, या ज्योग्राफी हो। इफ यू आर राइट परफॉर्मिंग वेरी वेल, देन दैट विल बी स्कोरिंग वन। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करना है, सिलेबस के साथ तैयारी करना है। That will be one important factor. Like easily material available, ये भी एक important factor होता है। For example, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने सोचा कि मैं ऑप्शन लेता हूं, तो अगर आप सोच तो लिए कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना, लेकिन आपके पास मटेरियल ही नहीं है, अवेलेबल मटेरियल ही नहीं है, उसके लिए आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, तो आप उस सब्जेक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो कुछ ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिनका मटेरियल्स का अवेलेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ मटेरियल इज अवेलेबल इजीली, देन यू कैन एबल टू परफॉर्म, यू एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। Okay, good coaching institute also very important, because suppose you have done a BTech, or you have done a master in history. Okay, आपने मास्टर हिस्ट्री में कर लिया है, आपको पता है कि हिस्ट्री में आप सिलेबस देखें, आप हिस्ट्री का सिलेबस सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आपको गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत कब पड़ती है? व्हेन यू विल ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज। ओके, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटिंग स्किल, राइटिंग ही जो आप आंसर लिखोगे वही आपको बताएगा कि वेदर यू विल कैपेबल ऑफ बिकम एन आईएएस ऑफिसर और नॉट। क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर आपके आंसर के थ्रू आपको जानेगा, he will know you through your answer whether you are means capable of being an IAS officer or not। तो आपका आंसर एक ऐसा होना चाहिए कि जो कि दिखाए कि कितना, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखना आंसर, कुछ भी नहीं लिख देना आंसर, जो भी क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना, एंड टू द पॉइंट एंड विद इन द वर्ड लिमिट। ये भी एक बहुत होता है, जैसे बहुत सारे आंसर 250 वर्ड्स में लिखने हैं, अब बच्चे क्या करते हैं 250 वर्ड्स में लिखने के बदले उसको 400 वर्ड्स में लिख देते हैं। वो लिखते हैं, सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मैंने लिख दिया तो हमको मार्क्स अच्छा मिलेगा, उसमें मार्क्स और कटता है। अगर वो 10 मार्क्स का है, आपने कितना भी अच्छा लिखा है, अगर आप 400 वर्ड्स में लिख दिए तो एग्जामिनर विल डेफिनेटली दे विल कट योर मार्क्स। ओके, सो ट्राई टू राइट योर आंसर विद इन अ वर्ड लिमिट in a given according to demand of the question. So that's why good coaching institute is required to join a test series. You will learn the process how to write an answer, किस तरह से लिखना है। तो गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक होना चाहिए आपके, जहां पर आप ज्वाइन कर सके उस चीज को। ऐसा नहीं कि बहुत ही दूर है और वहां पर दूर दूर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम नहीं है तो आप ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज में प्रॉब्लम होती है। ओके, अनदर वन इज योर ग्रेजुएशन बेस्ड। एक होता है बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड, तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके ऑप्शनल में। आपको इस पे सोचना चाहिए कि हाँ, विच आई चूज दोज ऑप्शनल सब्जेक्ट विच इज वेरी मच मैच विद माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ओके, जो एकेडमिक बैकग्राउंड जो है मेरा, जो चीज मैंने किया उससे मैच करें। एंड बेस्ट रिजल्ट इन आईएएस एग्जाम, जो भी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो ये सारी चीजों का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेवर बिलीव इन द मिथ, ओके, ऑफ द ट्रेंड, इट विल गेट यू नोवेयर। तो आपको ये सब चीजों पे सोचना नहीं है। किस तरह से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे, यहां पर मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप।
नाउ स्टेप बाय स्टेप में क्या है, सबसे पहले क्या करना है कि डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ आईएएस मेन सिलेबस। ठीक है, व्हाट यू विल डू, you take a printout of UPSC main syllabus, try to list out the optional subjects. Suppose you are confusion with sociology and public administration, or you are confusion with geography and PSIR, कहीं ना कहीं, और हो सकता है आपने और भी सोशियोलॉजी में भी आप सोच रहे कि तीन में से कौन सा एक सब्जेक्ट लूं। तो पहले तो ये लिस्ट करना है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स यू आर मींस एक आउट ऑफ जो 40 ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से एक तो आपको लिस्ट आउट करना है कि दो या तीन सब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट करना है, इसमें से आपको चूज करना है। इफ यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड सो यू कैन चूज फिजिक्स, ओके, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, और यू कैन चूज मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब में चूज करना है। तो लिस्ट आउट दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके, स्ट्रैकिंग आउट दिस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है उसको आप टिक करो। ठीक है, सपोज यू वांट टू चूज सोशियोलॉजी, देन सी द सिलेबस। सोशियोलॉजी का सिलेबस आप देखो, इवन यू कैन सी द सिलेबस ऑफ बोथ टू ऑप्शनल सब्जेक्ट। आप सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का सिलेबस देखो। ठीक है, और दोनों का सिलेबस में कंपैरिजन करो कि एक तो ये लेंथ ऑफ द सिलेबस देखो, किसका सिलेबस में ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, किसमें नहीं पढ़ना है। सो व्हेन यू विल कंपेयर सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली, और सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है दैट विल बी शॉर्टर एज कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनली आप एक ऑप्शन पेपर पे आप आ सकते हो। चूजिंग एंड सीइंग द सिलेबस प्लस past year question paper is also very important. Suppose you want to choose sociology, then see the past year question paper, किस तरह क्वेश्चन आता है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप क्वेश्चन देखो। आप देखो किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, किसमें ज्यादा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ओके, सो आफ्टर लिस्टिंग आउट दिस सब्जेक्ट, देन व्हाट यू विल डू, second, what you will do after making the list, think about the following points. Your degree background, suppose you have done a history, MA in history, okay, तो अगर आप हिस्ट्री एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हो, देन आपका हाफ वर्क डन, मींस यू नो द सिलेबस वेरी वेल, यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक्स, यू आर फेमिलियर विद ऑल द टॉपिक्स गिवन इन योर सिलेबस, तो आपका आधा काम हो गया। इफ यू आर डन अ बीटेक, ओके, तो आप आपने बीटेक तो आप कहीं ना कहीं आपको मैथ्स तो अच्छा होगा, कहीं ना कहीं फिजिक्स अच्छा होगा। अगर फिजिक्स मैथ दोनों में अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ज्यादा समय लगेगा पढ़ने में, तो आप ज्योग्राफी यूज कर सकते हो या कोई और साइंस का सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। तो ट्राई टू लिंक विथ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, डिग्री बैकग्राउंड, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। क्योंकि आप ऑप्शनल में, क्योंकि आपको 4 जीएस पेपर भी तो पढ़ना है, वो 1000 मार्क्स के हैं, और आपके ऑप्शनल भी है 500 मार्क्स का। इवन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसे पेपर आल्सो, दैट विल बी 250 मार्क्स। तो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस वे अप्रोच लेना है कि आप इक्वल टाइम सारे सब्जेक्ट्स में दे पाओ। ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शनल में ही सारा समय दे रहे हैं और जीएस में आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसे ध्यान नहीं पा रहे हो, तो उसमें आपको मार्क्स मेंस में जो आप मार्क्स आएगा वो इट विल बी नॉट एज गुड। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि डिग्री बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड काफी अच्छा आपको पता होना चाहिए। Then second one is scoring and success rate. So how you will know whether this subject will be scoring or success rate? By seeing the previous result analysis. So you can watch YouTube videos. Okay, many of means they are making a video on past year result analysis. किस optional subject में कितना अच्छा result हुआ, और they make a video of 5, or you can just download the report from UPSC website, government reports. Okay, where there will find out which subject is scoring one. तो सक्सेस रेट किस सब्जेक्ट में ज्यादा बढ़ा है पिछले 5 सालों में, तो वो एक आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ओके, थर्ड वन इज योर नोट्स अवेलेबिलिटी एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने बताया कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज वेरी गुड इंस्टीट्यूट कोचिंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मटेरियल अगर आपके पास रहेगा तो जाके आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। एंड यू कैन ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज टू नो what to join a test series to know your weak areas and strong areas, how you should write an answer, that will help you to score a good marks। ठीक है, क्योंकि आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। ओके, कंपटीशन बढ़ जाता है मेंस में, क्योंकि मेंस में जो 15,000 कैंडिडेट जो कि मेंस लिखते हैं, दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल, वो सारे प्रिपेयर होके जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई तुक्का में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया और मेंस में देने के उसमें मेहनत नहीं कर रहा। तो मेंस एग्जाम देने में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, 15,000 कैंडिडेट विल डू, दे विल डू वर्क हार्ड फॉर डे एंड नाइट्स। तो कहीं ना कहीं सब कोई चाहता है कि आईएएस बनना। ठीक है, तो उसमें आपको जो कंपटीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर सेम आंसर आपको सारे लोग लिख रहे हैं तो उसमें मार्क्स कहां से मिलेगा? यू शुड नो व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट इन योर आंसर। फॉर दैट ज्वाइनिंग अ कोचिंग, गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गुड, अगर ये सब नहीं रहेगा तो क्या होगा? दैट विल डिक्रीज इन मार्क्स इन योर मेंस एग्जाम। एंड जीएस रिलेवेंस,
अभी एक बात ये भी है कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करो जीएस रिलेवेंस होना चाहिए, मींस दिस सब्जेक्ट मस्ट बी ओवरलैपिंग विद द जीएस सब्जेक्ट. ओके, लाइक overlapping with GS subject like good strategy. Optional subject overlap with the GS. For example, if you will choosing geography, अगर आपने ज्योग्राफी चूज किया है तो ज्योग्राफी में अगर आप चूज करें देखोगे आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा ज्योग्राफी. आपको मेंस में जो जीएस पेपर 1 है उसमें आप देखोगे कि आउट ऑफ 250 80 to 90 marks question will be come from geography. Okay, and GS paper 3 also you see 60 marks will be from geography, environment से रहेंगे. तो कहीं ना कहीं आपको जीएस में वो काफी ज्यादा हेल्प कर रहा. तो अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ते हो तो आपको ज्योग्राफी जीएस के लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा. कहीं ना कहीं आपको टाइम का जो सेविंग हो रहा है वो हो रहा है और उस टाइम कहीं और भी आप यूटिलाइज कर सकते हो. ये मींस फॉर जीएस पेपर 4 एथिक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो या किसी और जगह पर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. तो दो सब्जेक्ट विच आर गुड ओवरलैपिंग विद जीएस पार्ट is will be a one you can say a smart way to prepare for UPSC एग्जाम. तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में आपका जीएस पार्ट भी कवर हो रहा. अच्छा खासा मार्क्स आप जीएस में उस सब्जेक्ट से स्कोर कर सकते हो. तो क्यों ना आप वही सब्जेक्ट को चूज करो. ओके, इट विल रिड्यूस योर एफर्ट्स इन द सेंस दैट यू विल पुट दैट एफर्ट इन सम अदर सब्जेक्ट for doing extra writing practice, for solving extra MCQs, or you can go through and to solve other means to cover other science and technology subject or environment subject. तो कहीं ना कहीं आपका जो reduce effort होगा and you will able to score a good marks also. अगर जो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट है तो अगर क्वेश्चन जो भी आते हैं ज्योग्राफी में, फॉर एग्जांपल इस साल 2020 का जो मेंस था उसमें आ गया था सरकम पैसिफिक बेल्ट. ओके, सरकम पैसिफिक बेल्ट के ऊपर लिखना था आंसर. So those who are from geography optional, they can write a good answer on circumpacific belt. They will write each and every importance like this is a convergent plate boundary है, most earthquake होता है, volcanic eruption यहाँ पर काफी ज्यादा होता है. So you will write some good answer. You will draw a diagram also because you know you have a habit to draw a diagram. In optional subject you will draw diagram on each and every answer. तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है अदर स्टूडेंट्स को अगर मान लीजिए 10 मार्क्स के पे अगर किसी को मिलता है 5 मार्क्स तो आपको कहीं ना कहीं 6.5 मार्क्स या 1.5 मार्क्स कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा. एंड इन यूपीएससी मेंस एग्जाम एक मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. यू विल सी द डिफरेंस कैंडिडेट हु इज रैंक 1 एंड दोस कैंडिडेट हु आर रैंक 45 और रैंक 100, डिफरेंस मार्क्स इज वेरी वेरी लेस. एक मार्क्स दो मार्क्स की वजह से आईएएस नहीं मिलता है, किसी को आईपीएस नहीं मिलता है. तो आपका ड्रीम जॉब क्या है? यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. कहीं ना कहीं आपको आईआरएस मिल जाएगा. तो अगर आपको आईआरएस मिल जाता है, अगर आपके पास अटेम्प्ट है तो विल अगेन अपीयर इन द एग्जाम. आप फिर से अपीयर होगे, फिर से देना पड़ेगा. तो इसलिए एक मार्क्स को आपको यहाँ पर लेना है. ठीक है, और लेना कैसे है? बाई हैविंग अ गुड स्ट्रेटजी, चूजिंग एन ऑप्शनल सब्जेक्ट दैट विल बी अ मैच विथ योर जीएस पार्ट. ओके, so some thumb rule for selecting the right option means favor your interest. You always go follow your interest. अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो सब्जेक्ट में तो डोंट चूज. ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कि हर महीना ऑप्शन चेंज करते हैं. 2 महीना सोशियोलॉजी पढ़े, नहीं मजा आ रहा, चलो हटा देते हैं. फिर वो जाकर ज्योग्राफी लिए, 2 महीना ज्योग्राफी पढ़े, फिर नहीं लिए, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिए. इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, existing knowledge of the subject is always a plus point. If you know subject very well, अगर पहले से पता है, अगर मान लीजिए आपने चूज किया ज्योग्राफी और यू हैव चूजन अ सब्जेक्ट कॉल्ड हिस्ट्री, इफ यू नो वेरी वेल, और फिजिक्स आपने पहले से फिजिक्स आपने पढ़े हैं एमएससी फिजिक्स में, तो यू नो वेरी वेल द सब्जेक्ट, देन यू कैन गो एंड चूज द सब्जेक्ट. ओके, दिस विल बी अ वन प्लस पॉइंट. ओके, ease of access to study material and availability of the guidance is very again of important. Means materials and guidance by a mentor is very important. That will guide you every time whether what type of answer is required and how to write an answer from a diff subject. Now this is the success rate of following optional subject जो देखा जाए. So public administration का success rate देखा जाए 10.5 है, geography का 5.8 है, political science का 6.4 है, sociology का 5.7 है, हिस्ट्री का 5.5, एग्रीकल्चर 18.6 एंड मेडिकल साइंस 16.3. सो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि आप देखोगे साइंस बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड से सारा से मतलब आ गया है. तो कैंडिडेट हु आर अपियरिंग फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3201, फाइनली जो फाइनल लिस्ट में आए 337 रिकमेंड हुए. तो 3000 बच्चे जो दिए थे एग्जाम, उस 3200 बच्चे दिए थे उसमें से ओनली 300 स्टूडेंट आर फाइनली. ओके, इन ज्योग्राफी 4049 candidates appeared who have written a mains by choosing geography as optional subject, and finally they selected as 236.
तो देखिए कहीं ना कहीं सक्सेस रेट किसी भी सब्जेक्ट एक खत्म हो रहा है. Economics is very good optional subject. If you are from, you have done your economics master, you know subject very well, then you can go through okay, each and every subject is good. That is depend on your interest or whether that will be matched with your background or not. Okay, so finally क्या होता है, कंक्लूजन में हम लोग ये आते हैं कि पर्सनल चॉइस, दिस इज योर पर्सनल चॉइस, decision making, you take a decision, this will take a decision. Okay, ultimately what to choose optional subject and study diligently means आपको पूरे अच्छे से तैयारी करना है. ओके तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके मन में आता है कि इकोनॉमिक्स चूज करें या यू वांट टू चूज फिजिक्स, आपको लगता है कि फिजिक्स चूज करना क्या सही रहेगा या नहीं, या केमिस्ट्री या मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही आप रखे या नहीं रहे, तो यू कैन गो थ्रू अ सब्जेक्ट. ओके इफ यू आर कंफर्टेबल, बट ऑलवेज कीप वन पॉइंट इन योर माइंड. After prelims exam, when our prelims result is declared or released, you have only 3.5 months in your hand. 3.5 months in your hand for mains preparation. So how you can manage your optional paper along with your GS paper? This is an important question. Okay, so that's why those who are planning to appear in 2022, I will recommend you should first complete your optional before going to write a prelims exam. देखिए प्रीलिम्स से पहले आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के एग्जाम दिए उसके बाद रिजल्ट आया उसके बाद आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं कि भाई क्या हमको लेना है, आपको मेन आप समझ गए आपको मेंस देना है तो इसमें ऑप्शनल में क्या रखें, तो उसमें कहीं ना कहीं आप एग्जाम आपका पूरा खराब हो जाएगा और आप नहीं दे पाओगे. इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर. यू कैन चूज ऑप्शनल, यू डिसाइड टुडे और टेक टाइम टू सी द सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. उसके बाद ऑप्शन चूज करने के बाद उसको तुरंत तैयारी में लग जाना है क्योंकि प्रीलिम्स से पहले आप एक बार ऑप्शनल को अच्छे से कवर कर लो. आई विल आल्सो से टू राइट सम ऑफ द आंसर फ्रॉम योर ऑप्शनल पेपर. कुछ ना कुछ आंसर प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए ताकि प्रीलिम्स के बाद आपके ऊपर जो बर्डन होगा वो ज्यादा नहीं रहेगा और बहुत ही आप कामली होकर एग्जाम का तैयारी कर सकते हो. एंड यू कैन मेक अ बैलेंस, यू कैन जस्ट स्कोर मींस प्यूरिफाई योर आंसर. यू कैन क्वालिटी इंप्रूव करना आपको, या बस कंटेंट को अच्छे से अच्छे और कितने अच्छे से आप लिख सकते हो उस पर आपको काम करना रह जाएगा. तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स काफी अच्छा आएगा एंड इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट यू विल क्रैक यूपीएससी एग्जाम विद अ वेरी गुड रैंक. तो ये डिसीजन, ये पॉइंट्स है कि आपका ऑप्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है. यू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दैट डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड, गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट. ओके, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये सब सारे चीज को रखते हुए मन में आप एक ऑप्शन को डिसाइड करो. Okay, now you have any query, you can ask me a question. If you have any doubt, if you have any question in your mind, you can ask me a doubt. Okay, Dhyanchand, yes, you have any doubt, you can ask me. Anu Kumari, so economics will be a good optional, you can choose economic. Okay, so that's okay. So we'll again we'll meet you all with a new topic. We'll not new webinar session where I will discuss again a very important topic. Public administration. See, public administration for GS is like in you know, paper 2 of public administration that include your governance part and public administration, that rural administration governance part. This will be relevant for your GS paper 2. Okay, in mains exam GS paper 2, that will be say 25% to 30% of the syllabus is overlapping with your public administration. So that will help you to write a good answer if any of the questions become over the good governance. Okay, a public policy of the government, what is the relevant of bureaucracy. Okay, what should be the public reforms, police reforms should be required. So in such case, if you have a public administration optional subject, then you're able to write a good answer. For economic subject, if you want to choose economic as the optional subject, then NCERT will be not sufficient. Okay, you have to read some very good standard books for economics, or you are asking for a GS part, then as NCERT will be a sufficient, and economic survey. You should read an economic survey. You should read a download economic survey. You should read it.
Okay, history optional. Okay, right now I don't know exactly the name of the book, Arashi, about the history optional, but definitely I will give you information. Okay, so this is my email ID. If you have any query, can ask me a question. If you have you if you have any query, can ask me a question. So I am just writing my email ID. Please note it down. My email ID. This is PRAVIN @carrier launcher.com. Okay, so this is my email ID. Okay, so you can ask me question if you have any doubt. Okay, I will inform your, I will answer your all of your doubt. Okay, so thanks for attending this session. We'll meet you in the next session where we'll discuss again with the new topics. Okay, thank you to everybody. Good night.